Atom. How do we define an atom? Atom is smallest neutral particle of an element which may or may not be capable of independent existence, right? The smallest possible neutral atom of an element, neutral होना चाहिए, which is capable of or incapable, not capable of independent existence was atom. कुछ जो independent existence दिखाते हैं, those are iron, copper, zinc, ये सब independent existence दिखाते हैं, helium, right? And some of them do not exist independently, hydrogen, nitrogen, oxygen, right? So this was something we said as atom. So इसका composition I said will need in sums. Composition was important. Though we'll discuss composition of atom in next chapter in detail, that is atomic structure. But still, थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए. For example, और वैसे जूनियर क्लास में भी पढ़ा आपने से कोई बड़ी बात नहीं. This is suppose nucleus. जो atom है, that is mostly divided into two parts. One is nucleus and extranuclear part, right? What nucleus contains? Nucleus contains proton and neutron, and electrons are in extranuclear part, right? Proton. A little information about proton. Mass, approximate mass of a proton is 1.66 into 10 raised to minus 27 kg, and charge on it is minus 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb. This was mass and charge of proton. Then neutron. Neutron का mass is nearly same, थोड़ा सा heavy होता है, 1.67 into 10 raised to minus 27 kg. This again approximation, not exact value. Charge on it is 0. There's no charge on proton, right? Then extra nuclear part mein we have electrons. So electrons revolve around nucleus in circular orbit. Mass of electron is approximately 9.1 into 10 raised to minus 31 kg. This is mass of one electron. Then what is charge on one electron? Charge on one electron is minus 1.6 into 10 raised to minus 19 कूलम. सो ये छोटी छोटी इंफॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए, राइट? इस चैप्टर के में कुछ सम्स आएंगे जिनमें जरूरत पड़ेगी, बाकी तो नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ना है. ना न्यूट्रल एटम में नंबर भी कुछ और वर्ड्स होते हैं, टर्म्स जो आपने जानने हैं यहीं पे. न्यूक्लियॉन्स. न्यूक्लियॉन किसको बोलते हैं? न्यूक्लियॉन एंड न्यूक्लियॉन नंबर. न्यूक्लियॉन्स है वन. Nucleons are particles which are present in nucleus. That is proton and neutron together are known as nucleon. And nucleon number is what? Total number of protons. Number of protons plus, this is nucleon number. Nucleon number. What is nucleon number? Number of protons plus number of neutrons. ये बनता है nucleon number. Then there is one more word, mass number, which is same as nucleon number. This is again same. Number of protons plus number of neutrons. This is frequently used term, mass number. Nuclear number, nuclear chemistry and nuclear physics में ज़्यादा word use होता है. Then next is atomic number. What is atomic number? Atomic number is number of proton. Number of proton present in nucleus. Present in nucleus, right? Though in a neutral atom, for neutral atom के लिए number of protons is same as number of electrons. Because कुछ questions आएंगे जिनमें इसकी जरूरत पड़ने वाली है आपको, right? So for neutral atom, number of proton is same as number of electrons, whereas in ions, what is another word? Charged particles के लिए ion एक word होता है. तो ions में you will have negative ion and then you will have positive ion. Negative ion में क्या होगा? Negative ion is formed by adding one electron. Extra electron आता है. Extra electron है in negative ion and less electrons in positive ion.
right? Number of electrons is less in case of positive ions, right? Neutral atom में electrons and protons are equal in number, whereas in ions there is a disbalance of number of protons and number of electrons. So atomic number कोई पूछेगा तो we'll use number of protons present in nucleus. इसके लिए mass number के लिए symbol is A and atomic number के लिए symbol is Z. Representation of element, compound, किसी भी एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट या एटम कह लो आप, एलिमेंट वर्ड यूज करना बेटर होगा. रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट, एक सिंबल यूज करते हैं हम लोग, राइट? वी यूज अ सिंबल, राइट? यहाँ पे एक नंबर आता है, दिस नंबर इज एटॉमिसिटी, यहाँ पे एटॉमिसिटी आता है, राइट? देन यहाँ पे एक टर्म आता है, इसको बोलते हैं चार्ज, फॉर्मल चार्ज यहाँ पे लिखते हैं. यहाँ पे आता है आपका एक नंबर, इसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर, राइट? दिस इज एटॉमिक नंबर. और यहाँ पे एक सिंबल आएगा, यहाँ पे एक सिंबल आता है, इसको बोलते हैं मास नंबर, राइट? सो दिस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट कह लो, मॉलिक्यूल कह लो, एटम कह लो. तो कैसे? फॉर एग्जांपल सपोज मुझे सल्फर एटम दिखाना है, सल्फर, तो कैसे दिखाऊंगा? यहाँ पे क्या लिखा जाए? एटॉमिसिटी. जैसे S8 एग्जिस्ट करता है तो आई राइट 8, तो ये दिस मींस व्हाट? हाउ मेनी एटम्स आर देयर. न्यूट्रल है तो यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा होगा. सल्फर का एटॉमिक नंबर इज 16, then mass number is 32, तो I'll write 16 as 32. अगर मुझे आयन दिखाना होगा, S2 नेगेटिव अगर दिखाना तो I'll write this way. तो इस पे 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा आ गए, राइट? सो रिप्रेजेंटेशन कैसे करना है? एक सिंबल होगा हर एक एलिमेंट के लिए, they have a unique symbol, right? So that symbol is there. Then molecular form में होगा तो we mention atomicity here as a subscript, then formal charge is a superscript, और उसके पहले क्या लिखते हैं हम लोग? एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, राइट? कुछ और वर्ड्स हैं इंपॉर्टेंट, लाइक आइसोटोप्स. आइसोटोप्स क्या होता है? सेम ही एलिमेंट के अलग अलग मास के एटम्स होते हैं, राइट? फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन का ही अलग अलग मास के एटम होंगे. ऑक्सीजन, ऑल ऑक्सीजन एटम्स आर नॉट ऑफ सेम मास, राइट? एटॉमिक नंबर सब में सेम होगा, बट मास नंबर 16 भी हो सकता है, नेचुरली अकरिंग, 17 भी हो सकता है, all of them exist in nature. So these are isotopes. तो isotopes क्या होता है? All the atoms of same element are not of same mass, though they will have same atomic number, right? एटॉमिक नंबर सेम हो सकता है, बट उनके न्यूक्लियस पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं, राइट? तो एटॉमिक नंबर क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस. तो ऑक्सीजन के नेचर में आपके अलग अलग टाइप के एटम्स मिलेंगे आपको. 16 O16 बोलते हैं, O17, O18. तो O16 में क्या होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज 8, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 8, but number of neutron in this case is also 8, whereas in O17 number of neutron is 9 and O18 number of neutron is 10. So isotopes क्या होते हैं? Isotopes of a same element are the atoms or say elements which have same atomic number but different mass number, right? So same atomic number but different, same atomic number but different mass number. So they differ in number of neutrons, right? Then there is a word isobar. Isobar, there is another word isobar. आइसोबार क्या होता है?
जैसे यहाँ पे डिफरेंट मास नंबर है, इस बार डिफरेंट एटॉमिक नंबर होगा, मास नंबर सेम होगा। तो आइसोबार्स है व्हाट? सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। सो इनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अलग होंगे बट टोटल न्यूक्लियन नंबर सेम रहेगा। तो डिफरेंट एटॉमिक नंबर आर नोन एज आइसोबार्स। एग्जाम्पल ले लो, आर्गन है, पोटेशियम है, कैल्शियम है। आर्गन का 18, 19, 20, दे हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सबका मास नंबर 40, 40, 40। अच्छा, कैल्शियम का ही आइसोटोप है, कैल्शियम का 39 होता है मास नंबर 1, 40 वाला भी एक आइसोटोप होता है। तो 18 आर्गन 40, 19 potassium 40, 20 calcium 40. All of them have same mass number, but they differ in atomic number, right? So these are isobars. Then there is one more word, not very significant in मतलब केमिस्ट्री बट न्यूक्लियर फिजिक्स या न्यूक्लियर केमिस्ट्री में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, आइसोटोन। तो आइसोटोन्स क्या होता है? डिफरेंट मास नंबर और डिफरेंट एटॉमिक नंबर और फर्क नहीं पड़ता, बट सेम न्यूट्रॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज सेम, राइट? सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर सेम होगा तो उसको बोलते हैं आइसोटोन। सेम न्यूट्रॉन नंबर सेम होना चाहिए, बाकी कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम एंड सोडियम ले लो। मैग्नीशियम सोडियम क्या होगा? 11Na23। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, जब यहाँ डाउट आने वाली चीजें कम है, 23 माइनस 11 दैट इज 12। एंड मैग्नीशियम में कितना होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन? एंड मैग्नीशियम इज 24 माइनस 12 दैट इज 12। सो दे हैव डिफरेंट प्रोटॉन नंबर बट सेम न्यूट्रॉन नंबर। तो ऐसे एटम्स को बोलते हैं आइसोटोन्स। सो दीज आर आइसोटोन्स, different mass number, different atomic number, but same neutron number. Number of neutrons in the nuclei is same. यहाँ पे इतना important term नहीं होगा, but nuclear physics, nuclear chemistry में this word is again important. Then एक word होता है isodiphers. Isodiphers वो क्या होता है? Difference, same difference in number of neutrons and protons. ये once again not very important here, but it is important in nuclear chemistry. तो isodifer word भी होता है, दिया हुआ हमारे बुक्स में मिल जाएगा आपको पढ़ने। This is term used in मतलब frequently used in nuclear chemistry. यहाँ पे जितना यूज नहीं होने वाला, बट रेडियो केमिस्ट्री या न्यूक्लियर केमिस्ट्री में यूज होगा, राइट? इसका भी एग्जांपल देख लो, किस वजह से मैग्नीशियम में ले लो आप और कैल्शियम ले लो। तो मैग्नीशियम में क्या है? 12Mg24। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना हो गया? 12। नंबर ऑफ प्रोटॉन 12। तो इसका डिफरेंस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का जो डिफरेंस है दैट इज 0। और 20 कैल्शियम 40 कर लो, तो इसमें भी सेम है। तो दीज आर आइसोडाइफर्स। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का जो डिफरेंस है दैट इज कांस्टेंट, उसको बोलते हैं आइसोडाइफर। ठीक है, ये कहानी है ना। सर वापस समझाओ, वो वाला पार्ट नहीं समझा। ये आइसोडाइफर, हाँ, सी बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे होंगे जिनमें प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स जो भी हो, बट दोनों का जो डिफरेंस है ना, वो डिफरेंस सेम आएगा। जैसे कि यहाँ पे मैग्नीशियम में कितने न्यूट्रॉन्स है, सॉरी प्रोटॉन्स है? 12। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज 12 एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना हो गया? 24 माइनस 12 दैट इज 12। तो 12 और 12 का डिफरेंस कितना हो गया? 0, राइट? यहाँ पे कैल्शियम में नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हो गया? 20 और न्यूट्रॉन कितना? अगेन 20। तो 20 और 20 का डिफरेंस कितना हो गया? 0। समझा? फॉर एग्जाम्पल ले लो 1H1, हाँ, ये हाइड्रोजन का एक एटम है, और 11Na23 सोडियम एटम है।
इसमें प्रोटॉन कितना है 1, न्यूट्रॉन कितना 0, तो डिफरेंस कितना हो गया 1 और 0 का डिफरेंस इज 1। यहाँ पे प्रोटॉन कितने हैं 11, न्यूट्रॉन कितने हैं 12, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 1। बेसिकली डिफरेंस दोनों में सेम होना चाहिए, किसका, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का जो डिफरेंस है दोनों में वो सेम होना चाहिए, तो उसको आइसो बोलते हैं, आइसो डाइफर। समझा? Yes, sir. ओके, नाउ बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आया, एटॉमिक मास। मास नंबर एंड एटॉमिक मास आर डिफरेंट। एटॉमिक मास वर्ड समझ गए हम लोग। मेनी पीपल थिंक कि एटॉमिक मास एंड मास नंबर आर सेम, बट दिस इज डिफरेंट। एटॉमिक मास मास नंबर है, एटॉमिक मास मींस मास ऑफ एन एटम। एक्चुअल में एक एटम का जो मास होता है ना उसको बोलते हैं एटॉमिक मास। एंड मास नंबर इज अ नंबर, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स मिला के जो बनता है दैट इज मास नंबर, राइट। मास नंबर हमेशा होल नंबर में दिया होगा, बट एटॉमिक मास रेयरली सिर्फ कार्बन 12 का ही आपको होल नंबर मिलेगा, बाकी किसी का होल नंबर नहीं मिलेगा, राइट। डेसिमल्स में मिलेगा, फ्रैक्शंस में मिलता है, राइट। ओके, सो पहले आपने समझ लिया कि मास नंबर इज डिफरेंट फ्रॉम एटॉमिक मास। हाँ, ये जरूर है कि एटॉमिक मास इज वेरी क्लोज टू इट्स मास नंबर। एटॉमिक मास और मास नंबर दोनों एक दूसरे के क्लोज होते हैं। जैसे अभी सोडियम का है, या चलो क्लोरीन का, सोडियम का ले तो मास नंबर कितना है 23 है, बट अगर आप उसको क्या बोलते हैं एटॉमिक मास देखोगे टेबल में तो 22.986 ऐसा कुछ दिया होगा, राइट। तो है क्लोज, 23 के क्लोज है, बट एग्जैक्टली 23 नहीं होगा। दिस इज अ होल नंबर, एटॉमिक मास इज नेवर अ होल नंबर। तो देखते हैं एटॉमिक मास होता क्या है, कैसे डिफाइन करते हैं। अच्छा, एक और चीज बता दो, कई लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन आएगा कि अगर दो एटम है, जैसे एक एटम है जिसमें 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन है, दैट इज कार्बन, और मैग्नीशियम है जिसमें 12 प्रोटॉन एंड 12 न्यूट्रॉन है, तो इसका मास इससे डबल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? सी, कार्बन 12 हैज, मास नंबर डबल होगा। मास नंबर डबल है वो तो दिख रहा है, एटॉमिक मास डबल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अगर आपको पहले से नॉलेज नहीं है तो आप पक्का बोलोगे कि सर 100% डबल होना चाहिए। भाई प्रोटॉन तो आइडेंटिकली, हमने सुना है एक प्रोटॉन का मास तो फिक्स ही होता है ना। नहीं समझे मैं क्या बोल रहा हूँ। दो मैंने एटम्स लिए, एक लिया मैंने कौन सा, कार्बन। कार्बन आई नो 6 न्यूट्रॉन है, 6 प्रोटॉन है, और पूरा एटम की बात कर दूं तो 6 इलेक्ट्रॉन है, राइट। अब आ जाओ मैग्नीशियम पे। मैग्नीशियम में क्या है, 12 प्रोटॉन है, 12 न्यूट्रॉन है और 12 इलेक्ट्रॉन है। मेरा क्वेश्चन है कि क्या इस एटम का मास, मैग्नीशियम के एक एटम का मास इसके एक एटम डबल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो इलेक्ट्रॉन डबल कर दिए, प्रोटॉन डबल कर दिए, न्यूट्रॉन डबल कर दिए, सब डबल कर दिए, अब तो होना ही चाहिए डबल, राइट, बट नहीं होता। ये वापस से हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियर फिजिक्स में, या सॉरी न्यूक्लियर केमिस्ट्री बोल लो, चाहे न्यूक्लियर फिजिक्स बोल लो, कुछ भी बोलो। न्यूक्लियर फिजिक्स ही लिख देता है यहाँ पे, शायद केमिस्ट्री में कमी ही दिया हुआ है, तो फिजिक्स में हम लोग पढ़ेंगे उसे डिटेल में, कि जब भी ये 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन मिलके न्यूक्लियस बना था ना, वो टाइम में एक मास डिफेक्ट प्रोड्यूस होता है। हाँ, कुछ मास का लॉस हो जाता है, वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। आइंस्टाइंस मास एनर्जी रिलेशनशिप, E इज इक्वल टू mc²। और ऐसे यहाँ पे भी कुछ मास डिफेक्ट आता है। हाँ, तो मास डिफेक्ट जो होगा वो प्रोपोर्शनल नहीं होता। ये डबल हुआ लेकिन मास डिफेक्ट डबल नहीं होता, वो कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा, ठीक है। वो हम हमारे कंट्रोल में नहीं है और हम समझ भी नहीं सकते। तो कुछ मास डिफेक्ट प्रोड्यूस होता है, तो वो जो मास डिफेक्ट है, जो रिड्यूस हो जाता है मास, एनर्जी लगती है कुछ इनको बाइंड करने के लिए, उस टाइम में जो अलग मतलब मास डिफेक्ट आता है वो सब में अलग अलग होता है। तो ये भी एक सरप्राइजिंग चीज है। एज अ स्टूडेंट मैं सोचता था यार ठीक है यार, इनका मास तो डबल कर दो। एक मैग्नीशियम जो है सब कुछ डबल डबल दिख रहा है आपको, 12 प्रोटॉन, 12 न्यूट्रॉन एंड 12 इलेक्ट्रॉन, तो एग्जैक्टली डबल आना चाहिए, बट वो भी डबल नहीं होता।
तो ये एटॉमिक मास हमारे हाथ में नहीं है, लॉजिक हमारे हाथ में उसका नहीं है। मास नंबर का लॉजिक है हमारे हाथ में, राइट। एटॉमिक मास का लॉजिक अपने हाथ में नहीं है, ठीक है। तो एटॉमिक मास अब कैसे निकाले, बिकॉज आपने बोल दिया भैया इसमें कोई लॉजिक नहीं है, तो लॉजिक से निकलेगा नहीं। एटम का मास इतना कम होता है। हमारे मोस्ट मतलब प्रिसाइज अगर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स देखोगे जो आपने रियल लाइफ में देखे होंगे, इफ यू गो टू अ ज्वेलरी शॉप, तो वो 0.01 ग्राम तक मेजर करके देगा, उससे छोटा तो वो भी मेजर नहीं कर सकता। दैट इज 10⁻⁻⁵ kg। और सेंसिटिव बैलेंसेस होते हैं 10⁻⁹ kg तक आप मेजर कर लो, बट mass of an atom, average mass अगर बोल रहा तो average mass of an atom is of the order 10⁻26 kg। एवरेज मास बोल रहा हूँ, एवरेज मास इज नियरली 10⁻26 kg। ये तो किसी बैलेंस से मेजर हो ही नहीं सकता, किसी भी मेथड से आप नहीं निकाल सकते, राइट। इनडायरेक्ट मेथड से भी हमारे पास मास मेजर करके निकालने का तरीका नहीं था। Nor it was possible for us to count number of atoms in a sample. Count number of atoms in sample ना, बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी है, सुनना। तो ये दोनों ही चीज हम नहीं कर सकते, ये मेजरमेंट नहीं कर सकते, ना तो हम एक सैंपल में कितने आइटम्स है वो काउंट कर सकते। नहीं तो एक सैंपल लेते, समझो 100 ग्राम का, वो मेजर करके नंबर ऑफ एटम से डिवाइड कर देते तो मास ऑफ एन एटम आ जाता। सो ये दोनों ही चीजें पॉसिबल नहीं थी। तब इमेजिन कैसे आप एक एटम का मास निकालोगे। नीदर यू कैन सेपरेट द एटम्स, सॉरी काउंट द नंबर ऑफ एटम्स इन अ सैंपल, नॉर यू कैन मेजर अवे एन एटम। तो ये पॉसिबल था ही नहीं, तो कैसे करे, कैसे करे, एक एटम का मास निकालना है। एम इज वन, एम इज टू मेजर मास ऑफ एन एटम। ये काम है। तो ये कैसे होता है, पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा था। ये पॉसिबल हुआ एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस के बाद। ये हमारे सिलेबस में है, पढ़ेंगे हम लोग इसको डिटेल में। अभी फिलहाल जितनी जरूरत उतना लिख देता हूँ। एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टेटमेंट है इसकी। व्हाट इज रिटन देयर, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस at same temperature pressure condition contains same number of atoms या molecules होता है एक्चुअली, particles के लिए same number of particles। so एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस में क्या लिखा हुआ है कि under same temperature pressure condition equal volume of all gases contain same number of particles। अब आप सोच रहे हो कि इसको कैसे मास, एटॉमिक मास निकालने में यूज किया। तो सोचने की बात यह है, लेट अस एज्यूम कि आपने एक गिवन वॉल्यूम लिया, किसका, हाइड्रोजन का, और एक दूसरी गैस ले ली ऑक्सीजन की, सेम वॉल्यूम लिया मैंने। इसका वॉल्यूम V है, इसका वॉल्यूम V है, ये दोनों का वॉल्यूम सेम रखा मैंने। तो जो इनके मासेस का रेशियो है, मास ऑफ इक्वल वॉल्यूम जो होगा, यही देखना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा स्टेटमेंट। तो ये इस पूरे वॉल्यूम का जो मास का रेशियो, वही मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम जो सेम वॉल्यूम के दो सैंपल हैं, उनके जो मासेस का रेशियो होगा वही उनके एटम्स के मासेस का रेशियो होगा। मास ऑफ V वॉल्यूम of hydrogen is to mass of V volume of oxygen will be same as mass of hydrogen atom to mass of oxygen atom।
ये लॉजिकल लग रहा है क्या आपको? नहीं सर। नहीं लग रहा। सी, आपने कुछ वॉल्यूम लिया हाइड्रोजन का, समझो 10 लीटर, एक एग्जांपल है, 10 लीटर हाइड्रोजन लिया एट नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन, 10 लीटर ऑक्सीजन लिया आपने, ठीक है। उसमें जितने पार्टिकल्स हैं, इसमें जितने पार्टिकल्स हैं हाइड्रोजन के, उतने पार्टिकल इसमें ऑक्सीजन के हैं। हाँ यस सर। सर। हाँ, लेट अस अज्यूम इसमें 100 पार्टिकल्स, एक नंबर बोल रहा हूँ, समझो इसमें 100 पार्टिकल्स, वो पार्टिकल्स मॉलिक्यूल है कि एटम, वो तो फिर बाद में पता चलता रहेगा। सो हाउ मेनी पार्टिकल्स आर देयर इन दिस? 100। हाउ मेनी पार्टिकल्स आर देयर इन दिस? 100, ठीक है। इसका मास, एक एग्जांपल बोल रहा हूँ, इसका मास समझो 1 ग्राम निकला और इसका मास 8 ग्राम निकला, ठीक है। तो 100 पार्टिकल्स हाइड्रोजन के, मास ऑफ 100 पार्टिकल्स, या एटम लिख देता हूँ फिलहाल कन्विंस करने के लिए, मासेस का रेशियो होगा, पूरे सैंपल के जो मास का रेशियो होगा वही एटम के मास का रेशियो होगा, ये अपने को समझना है। तो मास ऑफ सैंपल, मास ऑफ 100 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन is to mass of 100 atom of ऑक्सीजन। ये रेशियो कितना निकलेगा? नेचुरली 1:8 निकलेगा। 100 एटम हाइड्रोजन के, 100 एटम ऑक्सीजन के, दोनों का रेशियो जो निकलेगा 1:8 निकलेगा। तो एक का भी तो रेशियो वही हो गया, ये तो 100 का, तो 100 इंटू, ये क्या होगा, 100 इंटू मास ऑफ 1 एटम, देखते जाना, डिवाइड बाय, ये कितना हो गया, 100 इंटू मास ऑफ 1 एटम, और ये हाइड्रोजन, ये भी तो 1:8 ही निकला ना। तो जो पूरे सैंपल के मासेस का रेशियो है वही उनके एटम्स के मासेस का रेशियो होगा। अभी देख लो आपको ये कन्विंसिंग लगा कि नहीं लगा? यही ओरिजिन है एटॉमिक मास की, यहीं से, इसी कॉन्सेप्ट से मास ऑफ एन एटम ढूंढने की प्रोसीजर, ढूंढने का प्रोसीजर स्टार्ट किया। Yes, sir. आज की डेट में तो हमारे पास बेटर मेथड्स हैं बहुत सारे, बट जो डेफिनेशंस हैं वो अभी भी इन्हीं कॉन्सेप्ट्स के ऊपर चल रहे हैं।